See students? Sir, velocity. Okay. Let's see. A is what, students? A is A, B, C respectively. A is work, na? So that means we want to find that is work into, sorry, work divided by force into time, na? Force into time. Sir. Do you know work is equal to force into displacement? Yes or no? Work is equal to force into displacement. Yes. Divided by force into time. Correct. The force cancel. Displacement by time is what? Velocity. Velocity. All understood? Okay. Next. The initial velocity of a particle is 10 meter per second. It's moving with an acceleration 4 meter per second square. The distance covered by the particle after 2 seconds. This is a simple direct question. S is equal to T plus half AT square. So that is equal to how much? 10 into 2 plus half into 4 into 4. Yes or no? So how much? Yes, sir. That is equal to 28. Correct? 28. Next. Unit of universal gravitational constant. Students, F is equal to G m1 m2 by h square, na? Newton's law of gravitation. Huh? So G is equal to how much? Newton meter square per The kg. Newton meter square per kg plus square. kg square. F square by m1 m2, that is Newton meter square by kg square. Correct? And what is the value? Value of G? 6.67 into 10 to the minus 6.67 10 to the power Minus minus 11. 11. Newton meter square per kg square. If I am going to convert it into डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय ग्राम स्क्वायर अगर बनाएंगे इसको, तो हाउ मच एक्स्ट्रा वी हैव टू मल्टीप्लाई? सी 1 न्यूटन इज 10 टू द 5 डाइन. करेक्ट? Yes or no? Yes, sir. So let's see Yes, how sir. it is becoming. So that is 1 Newton is 10 to the 5 dyne meter square 10 to the 2 का square 10 to the 4 centimeter square. Yes or no? Into 10 to the 3 का square. 3 का square how much? 10 to the 6. 6. Into 5 into 4 9. 10 to the power 3. जी, तो पहले से कितना था? 6.67 into 10 to the minus 11 था. अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6.67 into 10 to the minus 8. करेक्ट? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. सीजीएस की वैल्यू अगर पूछा होगा, so that also you can do. Got it? Newton's law of Yes, sir. gravitation, it is universal gravitational constant. Sir, can you just wait for 1 minute? We'll copy it down. See next. If the speed of a wave is 350 meter per second and its wavelength is 100 centimeter, then the frequency of the wave will be. Students, चलो एक वेव के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको साउंड्स में. Students, you know this is one cycle. ठीक है? यहाँ से टाइम शुरू होता है 0, यहाँ से टाइम t, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रॉफ. ठीक है? यहाँ पर टाइम t/2. यस सर नो? टोटल एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड. यस सर नो? And reciprocal of time period is equal to, students, you know, frequency. Yes or no? Students, you know, velocity is equal to displacement by time, na? And the time, the path traveled by sir. one cycle, that is known as the length of the path is wavelength, na? That is one wavelength, na? That is lambda, we say. Correct? The particle is vibrating and taking this much time to cover this much displacement. Yes or no? So, you know, velocity is equal to what? Displacement by time, na? So wave velocity is Yes, going to sir. be wavelength by time period. Correct? Wavelength by time period. And you know, 1 by time period is equal to frequency, na student. That means I could write velocity is equal to lambda by t. And you know, 1 by t is equal to frequency. So it could be written as velocity is equal to wavelength into frequency. Got it? Wave velocity is equal to wavelength into frequency. Speed of the wave is how much, students? 350 meter per second. Correct? V is equal to how much given? 350 meter per second. And wavelength is how much given, students?
100 centimeter. We have to The convert 100 centimeters, so So 350 that hertz. will be 1 meter. Then it Correct. will be 350 hertz. Yes. Then he's asking what frequency. Frequency is equal to how much? V by lambda. So that is 350 by 1. That is 350 hertz. Hertz means, students, 350 cycles per second. Yes or no? 350 hertz means 350 cycles per second. Okay. 350 cycles per second. That is Yes, sir. 350 hertz. The wave having compression and rarefaction is known as, स्टूडेंट्स आपको पता है क्रेस्ट एंड ट्रफ एंड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. So longitudinal. longitudinal wave. Longitudinal wave. Correct. और ये जो वेव है ये कौन सा वेव है? दिस इज व्हिच टाइप ऑफ वेव? So The transfer, transfer. The transverse wave. ट्रांसवर्स वेव में क्या रहता है? क्रेस्ट एंड ट्रफ. crest and trough. तो ये चीज थोड़ा आप याद रख लेना. परपेंडिकुलर टू द मीडियम और पैरेलल टू द मीडियम, इसके बारे में आपको पता है. ठीक है. ये है क्रेस्ट, ये है ट्रफ एंड दिस इज ट्रांसवर्स वेव. करेक्ट. और कंप्रेशन रेयरफैक्शन किस पे होता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव पे. ठीक है. A complete set of crest and trough is known as one cycle. Yes or no, students? तो कभी कभी स्टूडेंट्स वो वेवलेंथ ना देके वो कभी कभी क्वेश्चन पे ये भी देता है, तो डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ इज हाउ मच, कुछ दिया रहता है. दैट इज लैम्बडा बाय 2 ना स्टूडेंट्स. डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ इज लैम्बडा बाय 2. वो डिस्टेंस कभी कभी देता है. तो डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रफ इज दिस मच. मतलब वो वेवलेंथ बिना दिए क्रेस्ट एंड ट्रफ का डिस्टेंस दे देता है क्वेश्चन पे. सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आपको डू 2 मल्टीप्लाई करके वेवलेंथ निकालना होगा. गॉट इट? Yes, sir. ठीक है. Let's go next. If the distance between two masses is doubled, then the gravitational force between them will become how much? Friends, you know gravitational force is equal to how much? F is equal to G m1, M1 M2 by R square. and F is inversely proportional to R square. Yes or no? So I think it will be option Distance one. between Sir, it will first option 1 4. yes, yes, yes. Distance of the mass is doubled. The distance between them is doubled. Yes or no? So F will become how much? F proportional to 1 by 2r हो गया ये 2r का स्क्वायर. So that is equal to how much? 1 by 4 times of r square. So ये 1/4 हो जाएगा. ठीक है. It will become how much? 1/4. F becomes 1/4. 1/4. Got it? Next. Yes. Focal length of a lens is 25 centimeter. In diameter, power of the lens will be how much? You know power of diameter is always in meter. Yes or no? And you know power is equal to reciprocal of focal length. That is centimeter पे दिया हुआ है 100 by 25. That is how much? 4 diameter. 4 diameter. So that is 4 diameter. Okay. Next, let's see. The given ray diagram, correct relation for Snell's law. Snell's law क्या पता है स्टूडेंट्स आपको? Sin I by sin R. Correct? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. I is how much you see. This is not angle Sir, of incidence. This is angle of sir, incidence. 90 minus A. 90 minus A. Or angle of refraction is this one. 90 minus B. 90 minus B. 90 minus B. So sin 90 minus theta is cos theta. Na? Yes, sir. Sin 90 minus A by sin 90 minus B is equal to constant. Understood? This is the correct option. Got it, students? Yes, sir. Which of the following does not represent, which term does not represent electric power? Sir, P is equal to V by I. By So this is not representing the, not represent, ठीक है? Does not भी बच्चे भूल जाते हैं. Next see. In the given circuit, the value of current I will be. How much current will flow in the circuit? Friends, these three 2 resistances are in, ampere. yes, three resistances are in parallel. 3, 3, 3 will be 1. This is 1, 1, 1, 3 ohm. So total resistance R equivalent is equal to how much? 3 ohm. क्योंकि ये तीनों का हो गया 1 ohm और फिर तीनों सीरीज पे लग गया 1 ohm, 1 ohm and 1 ohm. So कितना हो गया ये? 3 ohm हो गया. Yes or no? If it is becoming 3 ohm, then it is 6 volt. Yes or no? So फिर क्या कर लेंगे इसको? V is equal to I R, I is equal to V by R. So that is 6 by 3. कितना हो जाएगा? 2 ampere. Got it?
Next. Unit of magnetic flux is how much, students? Weber. 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 Spring constant of a spring is this much Newton per meter. Work done to stretch it 10 to the -2 meter from mean position is how much? Students, work done by spring क्या है? Energy stored in the K2. work done is equal to half kx स्क्वायर है ना स्प्रिंग का. तो यहाँ पर कितना कंप्रेस कर रहा हूँ मैं 10 to the -2 मीटर. ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा देखो. Half into k is how much? 6 into 10 to the 3. Correct? Into 10 to the -2 का square. Yes or no? So that is equal to how much? 0.3 joule. Understood, students? That is 0.3 joule. Got it? Yes, sir. So next. Ratio of potential energy. हाँ बताओ. सर वो मेरा स्क्रीन हैंग हो गया था सर. आप Ratio of potential energies of a body A and B will be how much? Simple, students. M1 G1 H1. ठीक है. By second केस पे कितना? M2 G2 H2. Yes or no? यस सर. पहले पे MGH है, सेकंड पे लेकिन क्या है? मास 2m है, G तो G है, 2m और H 3/4H है. 3a. कैंसिल होके 4 4 2/3 कितना हो गया? 2/3 ना. 2/3. So that is Yes, sir. first option. Okay, got it? यस सर. Yes, sir. Next let's go to ये 13 क्वेश्चन से आया था राजस्थान बोर्ड पे. ठीक है, दिल्ली बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. Bomb of mass 30 kg at rest explodes into two pieces of mass 18 kg and 12 kg. The velocity of 18 kg mass is 6 meter per second. And the kinetic energy of the other mass is how much? Friends, बम का मास कितना था? 30 kg था. अभी ये जो जब एक्सप्लोड हुआ तो एक पार्ट का मास कितना हो गया? 18 kg. और उसकी वेलोसिटी कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकंड. यस सर. और दूसरी पार्ट का मास कितना है? 12 kg. सर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से वैल्यू निकाल के फिर तो वेटू निकालेंगे. पहले बम रेस्ट पे था तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द बम वाज हाउ मच? 0. आफ्टर Yes, sir. मोमेंटम कितना हो जाएगा? m1 v1 plus m2 v2 कोलिजन के बाद. ठीक है, दैट मींस 18 into 6 plus 12 into v2. करेक्ट. तो इसको कितना आया? v2 is equal to how much? 9 मीटर पर सेकंड आया ना. और वो पूछ रहा है कि उसका काइनेटिक Yes, sir, एनर्जी 9. कितना है. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू हाफ into m2 कितना है? 12, v2 कितना है? 9 का स्क्वायर. सो दैट इज हाउ मच? 81 2 21 486 जूल. यस. गॉट इट स्टूडेंट्स? 486 Yes, sir. centimeter. हाँ. देखो कंडक्शन में तो डायरेक्ट कांटेक्ट पे आता है ना ऑब्जेक्ट, तो उस पे उसके लिए कुछ नहीं चाहिए. रेडिएशन में भी नहीं चाहिए मीडियम की जरूरत, ग्रेविटी के इंडिपेंडेंट. लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पता है ना. जब हम कोई भी लिक्विड को गर्म करते हैं, है कि नहीं, तो कंटेनर जो गर्म होता है डायरेक्टली इन कांटेक्ट मॉलिक्यूल्स एक्चुअल ट्रांसफर, दैट इज क्या कहते हैं? मतलब डायरेक्टली टच होते हैं जहां पर, उसको कहते हैं कंडक्शन. वाटर के नीचे वाला मॉलिक्यूल जब काइनेटिक एनर्जी गेन करता है तो वो क्या करता है? ऊपर की तरफ चला जाता है. Yes, यहाँ sir. पर जब ड्राई मतलब अगर एयर ड्राई हो जाए, ग्राउंड को जो एयर लगा हुआ है वो ड्राई हो गया, लाइट हो गया. लाइट हो गया मतलब एंटी ग्रेविटी से वो ऊपर की तरफ चला गया, है कि नहीं. और ऊपर पे जो भारी एयर था वो Yes, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गया. तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज एसेंशियल फॉर व्हाट? कन्वेक्शन. गॉट इट? सर Yes. रेडिएशन का मतलब एग्जैक्टली क्या मतलब है? सन से जो लाइट रे आता है ना, तो वो पहले आके ग्राउंड पे गिरता है, तो वो तो मीडियम को हिट नहीं करवाता है ना. पहले ग्राउंड हिट होता है, फिर ग्राउंड को जो एयर लगता है मतलब टच करता है वो पहले गर्म होता है, फिर इस तरह से वो मतलब विदाउट हिटिंग द मीडियम, heat is transferring without, it is not Yes, yes. without hitting the medium, that is known as radiation. Okay, next. An observer moves towards a stationary plane mirror at a speed of 4 meter per second. ठीक है. सर आप प्रीवियस वाला क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हैं? हाँ.
An observer moves towards a stationary plane mirror at a speed of 4 meters per second. The speed with which his image moved towards him. ठीक है स्टूडेंट्स, 4 मीटर पर सेकंड। देखो थोड़ा यहाँ पर सर 8 मीटर सर बोले थे आप सर 2 बट 2 8 हो जाता है डबल। ऑब्जर्वर स्टेशनरी मिरर की तरफ कितने में जा रहा है? 4 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, करेक्ट? With which his image moves towards him. Observer moves towards. Students देखो, मैंने बताया था यहाँ पर, हाँ मैंने बताया था कि अगर ये u में जा रहा है वो भी u में आएगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी की बात बता रहे हैं ना आप लोग, इसको क्या लगेगा? What you will see, आपका 4 और उसका 4 मिलके कितना हो जाएगा? 8 मीटर। ये विथ रेस्पेक्ट टू द मैन पूछा, विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर नहीं पूछा है, कुछ नहीं दिया मतलब विथ रेस्पेक्ट टू मूव टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स हिम मतलब whom, टुवर्ड्स द मिरर पूछा है या टुवर्ड्स द पर्सन पूछा है? पर्सन। तो पर्सन मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन हम ले रहे हैं। अगर एक बॉडी इस तरफ मूव करता है 4 मीटर पर सेकंड पे और यहाँ से एक बॉडी इस तरफ मूव करता है 4 मीटर पर सेकंड में, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या करते हैं हम? 4, इसको अगर +4 ले रहा हूँ माइनस माइनस इसको नेगेटिव ले लूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। सर 8 मीटर पर सेकंड। गॉट इट? सर अगर मिरर के रेस्पेक्ट में होता तो 4 मीटर होता है और सर। यस यस यस, नो डाउट, विथ रेस्पेक्ट मूव टुवर्ड्स हिम पूछा है, ठीक है? लेट्स गो नेक्स्ट. यस If an ammeter in the circuit, given circuit reads 2 ampere, मतलब करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है? What is the value of the resistance R? The resistance of the ammeter is negligible, ठीक है? कितना होगा? What is the resistance? What is the value of resistance R? 1 हाँ, तो देखो यहाँ पर अगर ये 6 वोल्ट जा रहा है तो यहाँ पर करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर जा रहा है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? R इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? R is equal to V by I ना, 6/2 3 ओम होना चाहिए, और 3 ओम होने के लिए इसका क्या है? 6 into 3 by 6, 3 पैरेलल है, तो दैट इज 6 into 3 by 6, सर 2 कितना हो ओम गया? होगा। 2 ओम। तो बाकी R कितना होना चाहिए? 1 ओम, तभी जाके मिलके 3 ओम होगा, देन ओनली कैन सी दैट R is 1 ओम। 1 ओम होगा तो भी जाके कंडीशन सेटिस्फाई होगा, करेक्ट? यस यस सर सर। नेक्स्ट, particle starts its motion from rest under the action of a constant force. If the distance covered in the next 10 seconds is s2, then क्या रिलेशन है उन दोनों के बीच में? इस तरह के क्वेश्चन मैंने मेरी असाइनमेंट में भी दिया था, ठीक है? डायग्राम बना देता हूं मैं। पहले क्या होता है? t1 is equal to 10 सेकंड पे the distance covered in the next 10 seconds, particle starts its motion, yes or no, from rest under the action of a constant force. If the distance covered in the next 10 seconds is s2, ठीक है? देन s1 और s2 के बीच में क्या रिलेशन है? पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया? सर S इज इक्वल टू हाफ एट स्क्वायर वो रिलेशन डालेंगे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि रेस्ट से सर हो रहा है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सर S1 कौन सा है? पहला वाला S1 है। मतलब फर्स्ट 10 सेकंड S1 और नेक्स्ट 10 सेकंड S2। यस 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 यस। तो फिर S2 इज इक्वल टू 3S1 हो। तो फिर सर लास्ट ऑफ। हाँ सर। हाँ दिखाई दिया उसने, तो फिर देखते हैं थोड़ा। फ्रेंड्स पहले केस में S1 इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ A t1 स्क्वायर, करेक्ट? दैट मींस कितना हो गया? हाफ यस सर। into A into 10 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? 50 है ना? तो 50 है। सेकंड पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा थोड़ा ना उसका वेलोसिटी 0 होगा, v is equal to u plus at ना, दैट यस मींस सर। a तो into A 10 हो जाएगा ना, दैट इज होगा। 10a हो जाएगा ना, yes or no? तो s2 is equal to how much? u into t plus half at square, so that is equal to u कितना है? 10 into a, निकल गया अभी, into t कितना है? 10 सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड की बात कर रहे हैं हम, yes or no? यस is सर। equal to half into plus half into एक half into a into t square, yes or no? That is half into a 10 into 10 to का 10 स्क्वायर। स्क्वायर। So अभी अगर तो s1 by 100 है प्लस 50 है। 150 तो 50a by 150 है, 150 है। so that is 1 by 3. So s2 और s1 के बीच में क्या रिलेशन आ गया? 3s1। 3S। सर मतलब सर ये रिलेशन सब टाइम के लिए कांस्टेंट है या? Two planets of radius r1 and r2 are made from the same material having same density.
The ratio of acceleration due to gravity g1 by g2 at the surface of the planet. Listen, students. Students, क्या फॉर्मूला है g का? gm by r square ना? Yes or no? Yes. Planets के रेडियस ये है. देखो स्टूडेंट्स, g is equal to how much? gm by r square, correct? Yes. मास क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ना? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो मास क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. Yes, sir. सेम डेंसिटी Yes. लिखा है ना क्वेश्चन पे. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सॉलिड स्फीयर है तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r1 क्यूब, करेक्ट, डिवाइडेड बाय Yes, sir. r1 स्क्वायर. पहला के लिए रो तो सेम है ना, कैंसिल हो जाएगा. जी भी सेम है. तो फाइनली ये r और r कैंसिल होके फाइनली कितना आ रहा है? मतलब g1 जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r1 ना. एक r1 r स्क्वायर सिर्फ ऊपर, ये भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है. तो बचा कितना ये कैंसिल होने के बाद? सिर्फ r1 बचा ना ऊपर. इट इज Yes, g1 sir. proportional to r2. So like that we can write g2 proportional to r2. g1 by g2 कितना हो जाएगा? r1 by R1 r. by R. Understood? Yes, sir. Let's go next. Concave mirror of focal length 15 centimeter forms an image. The position of the object when the image is virtual and linear magnification is 2 is. Friends, focal length कितना दिया हुआ है? कनकेव है तो -15 सेंटीमीटर ले लेते हैं. मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है? +2, Plus. करेक्ट. दैट मींस माइनस Sir, b बाय. mention नहीं है ना sir. हाँ हाँ Magnification mention नहीं है. सिर्फ given है कि linear magnification is 2. हाँ हाँ, दैट इज मैग्निफिकेशन. ठीक है. सर नहीं सर, मतलब वो प्लस हो या माइनस वो मेंशन नहीं है ना. तो मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस लेंगे ना बेटा. अगर माइनस होगा तो माइनस लिखेगा ना. ओके सर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v और u में क्या रिलेशन है? What is the relation between v is equal to minus b is equal to V 2u, माइनस by minus u is equal. correct? Yes sir, minus b is equal to u. So 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. So that is 1 by Yes sir. minus 1 by 2u minus 2u. plus 1 by u is equal to 1 by f. So अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -u1 plus 2 by 2u is equal to how much? -1 by 15. 1 by minus 1 by 15. अगर सॉल्व करेंगे तो -1 15 to u is Sir, equal to how 2u much? is equal to minus -15 15. by 2. That is u Yes is sir. equal to how much? -7.5 Minus centimeter. 7.5 centimeter. ठीक है. थोड़ा हमेशा इसको करने के बाद स्टूडेंट्स कहीं पे साइन की गलती हो सकता है, तो आप थोड़ा डायग्राम बना के देख लेना कि हमारे जो रे डायग्राम्स कहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर इमेज रहता है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, थोड़ा वेरीफाई कर लेना. ठीक है. अंडरस्टूड? क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व्ड कि बहुत केसेस पे प्लस माइनस की गलती की वजह से ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे, बट दैट शुड नॉट बी. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं. Yes, sir. See here. A body on an inclined plane slides down 1/4 of the distance in 2 seconds. It will slide the complete distance along the plane कितने टाइम पे? If the inclined half तो जीरो फ्रिक्शन. ठीक है. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर, मान के चलो टोटल एस है, टोटल डिस्टेंस इज एस, और ये कुछ s/4 कितने सेकंड पे आ रहा है स्टूडेंट्स? 2 सेकंड पे. ठीक है. स्लाइड्स डाउन मतलब बॉडी स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट. ठीक है स्टूडेंट्स. दैट मीन्स अगर हम बात करें तो s/4 इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर कर देंगे ना, करेक्ट. Yes, sir. दैट मीन्स अगर एक्सीलरेशन निकालेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 टू 8 2 का स्क्वायर 4, दैट इज s/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स. Yes, sir. यहाँ पर अगर मैं t की जगह पे 2 सेकंड डाल दूं, सो नेक्स्ट पूरा अगर मूव करेगा तो कितना जाएगा? वही हाफ ए टोटल टाइम का स्क्वायर. ये सब ना, टोटल s की जगह पे s रख लेते हैं, हाफ की जगह पे हाफ रहा, और a की जगह पे s/8 डाल दिए इंटू टी स्क्वायर. अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एस एस कैंसिल, 16 16 पर 4.
कितना टाइम लगेगा उसको पूरा आने के लिए? सर 4 4 सेकंड। seconds. Got it? Next. When 4 equal resistors are connected in series battery, they dissipate a power of 10 watt. The power dissipated through them if connected, any of them if connected across the same battery. ठीक है, मतलब एक अगर लगवाएंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा? स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 4 है ना, इक्वल रेजिस्टेंस। Yes, यस सर। तो अगर तो एक का 4R. रेजिस्टेंस, हाँ तो एक का रेजिस्टेंस अगर R लेंगे, R R R लगाए थे और कुछ हमने पोटेंशियल दिए थे जो भी है V, ठीक है, और उसको अभी क्या करना है, उसी को लेके उसी पोटेंशियल में अगर एक में कनेक्ट करेंगे R को तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, और वो वहां पर 10 वाट कंज्यूम कर रहा है। P इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स? V स्क्वायर बाय R ना, मतलब 4R, दैट इज इक्वल टू 10 वाट, करेक्ट। यहाँ पर P कितना होगा? V स्क्वायर बाय ओनली R, यस और नो? यस सर। Yes, sir. सी हियर, V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू 10, तो V स्क्वायर बाय R सिर्फ कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाय 4R इज इक्वल टू 10, So 40 volt होगा. सर 40 watt. 40 तो ओनली V वाट। स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू हाउ मच? 40 वाट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? डायरेक्टली देखने की पता चल रहा है 40 वाट। तो एक कितना कंज्यूम करेगा? 40 वाट। सर एक डाउट है पूछो। सर, वोल्टेज